Good morning everyone. In this video lecture we are going to discuss about the non-homogeneous linear partial differential equation with the constant coefficient, and this is the lecture number 6 of the unit number 1. So let me start it. First of all, we are going to discuss about the definition of the non-homogeneous linear partial differential equation with the constant coefficient. So the definition is a linear partial differential equation with the constant coefficient is known as non-homogeneous linear partial differential equation with the constant coefficient if the order of all partial order derivative involved in the equation are not equal. For example, let me see this differential equation. In first term, order of the derivative is 2, del 2z by del x square. In the second term, del cube z by del y cube, that is the derivative of order 3. Then first order derivative, and then simply z, that is zero order derivative. So हर टर्म में ऑर्डर का डेरिवेटिव का ऑर्डर आपका सेम नहीं है. सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द नॉन होमोजीनियस. होमोजीनियस आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हर एक टर्म का ऑर्डर सेम होता है, बट इसमें हर एक टर्म का ऑर्डर सेम नहीं है. सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन आल्सो बी री रिटन एज एफ डी डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. एफ ऑफ एक्स वाई is the function of x and y which is on the right hand side of the differential equation, and f d d dash we can simply make f d d dash by replacing del by del x by d and del by del y by d dash, जैसा आप लोग पहले भी इस बारे में काम कर चुके. नाउ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग टू कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी आपकी है रिड्यूसिबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द सेकंड कैटेगरी इज इररिड्यूसिबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो कैसे हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं? अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी डी डैश इज नोन एज द रिड्यूसिबल इफ इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी विद ए बी सी एज द कॉन्स्टेंट्स. And again FDD dash is known as the irreducible if it is not reducible into the linear factors. For example, let me see this factor d square minus d dash square. It is factorizable into the linear factors of the form d plus d dash into d minus d dash. So this factor is a reducible factor. Again, let me see d square minus d dash cube, d square minus d dash cube. This factor cannot be decomposed into the linear factors, so this is irreducible linear factor, irreducible factor. So हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टू कैटेगरीज में ब्रेक किया है, रिड्यूसिबल एंड नॉन रिड्यूसिबल. रिड्यूसिबल कब होगी? जब उसका एफ डी डी डैश लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूसिबल होगा, और इररिड्यूसिबल कब होगी? जब उसका ये फैक्टर आपका नॉन रिड्यूसिबल या इररिड्यूसिबल होगा. सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस that how can we find the CF of reducible and non-reducible partial differential equations. So first we are working on the reducible differential equation. Differential equation is reducible, so FD dash is factorizable into the linear factors. Then we have following cases. So to find CF we have the following rules. Rule number 1 is if corresponding to each non-repeated factor बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी. मान लीजिए कि जो आप लोग एफ डी डी डैश पर काम कर रहे थे, एफ डी डी डैश पर काम कर रहे थे, वो आपका लीनियर फैक्टोराइजेबल है, और वो फैक्टोराइजेबल इस फॉर्म में है बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी में. तो आपको यहाँ से सी, ए और बी कंपेयर करना है, और उसको इस फॉर्मेट में पुट करना होगा e to the power cx upon b into phi of by plus ax, and b can't be 0. It is the necessary condition of rule number first. Now we have three particular cases of rule number first. Rule number 1a, that is the first case of the rule number 1. If c equal to 0, then this factor becomes
BD minus AD dash and the CF will be converted into phi of BY plus AX, because a to the power CX upon B था. If we are putting C equal to 0, then it will be converted into 1. Then rule number first B. If A equal to 0 in rule number 1, then the linear factor will be converted into BD minus C. Now we can put the values of B and C in the standard factor, and the CF will be converted into e to the power Cx upon B into phi of y, where B is not equal to 0. Then the last rule of the rule number 1 is if A equal to C equal to 1 and B equal to 1, A equal to C equal to 0 and B equal to 1 in the rule number first. Hence corresponding factor D, अगर आप लोग ए सी 0 एंड बी 1 पुट करते हैं, देन ये फैक्टर आपका केवल डी रहता है, और डी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका सी एफ अगर आप इससे मॉडिफाई करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फाई बी सिंपली फाई ओ वाई. जितने भी हम लोग यहाँ पर फाई यूज़ कर रहे हैं ऑल आर द आर्बिट्रेरी फंक्शंस. आप फाई की जगह एफ जी पी जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं. आफ्टर दैट रूल नंबर सेकेंड इज corresponding टू अ रिपीटेड फैक्टर. मान लीजिए कि जो आपका एफ डी डी डेस है वो फैक्टोराइजेबल तो है, बट उसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आपको मिलते हैं. रिपीटेड मीन्स हो सकता है कि फैक्टर आपका 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए. तो यहाँ पर मान लीजिए हमने आर टाइम्स लिया, पावर इज आर, सो फैक्टर इज रिपीटेड अप टू दी आर टाइम्स. देन क्या करना होगा कि ई टू दी पावर सी एक्स प्लस बी तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया. अब हम लोग फाई वन बी वाई प्लस ए एक्स एक फंक्शन आर्बिट्रेरी लेंगे प्लस एक्स इंटू फाई टू बी वाई प्लस ए एक्स. एक्चुअली सेम वेरिएबल का हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बनाते जाएंगे, और कितने फंक्शंस हमको बनाने हैं, एग्जैक्टली आर फंक्शंस. तो फाई वन बी वाई प्लस ए एक्स प्लस एक्स फाई टू बी वाई प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फाई थ्री बी वाई प्लस ए एक्स अप टू दी एक्स टू दी पावर आर माइनस वन फाई आर बी वाई प्लस ए एक्स. Obviously b can't be 0 in rule number second also. Now we have some particular cases of rule number second. If c equal to 0, if c equal to 0, then simply we can put c equal to 0 in the standard form. Then the cf will be converted into phi 1 by plus ax plus x into phi 2 by plus ax plus x square phi 3 by plus ax, similarly and so on x to the power r minus 1 phi r of by plus ax. Obviously b is not equal to 0. In case number b, if we are putting a equal to 0, then कुछ नहीं करना. Actually rule number second a, second b, second c all are the particular cases of rule number second. Simply हमको a, c और b की accordingly values पुट करनी है. तो अगर हमने a equal to 0 पुट किया, तो a equal to 0 जहाँ पर भी आपका यहाँ पर है हर जगह उसको 0 पुट कर दीजिए, आपको ये वाला CF कन्वर्ट होकर मिल जाएगा. In rule number C, if we have a equal to c equal to 0 and b equal to 1, again if we are putting all these initials in the standard form, then our CF will be converted into phi 1y plus x phi 2y plus x square phi 3y and so on up to the x to the power r minus 1 phi r of y. So these are the rules to find complementary function of a reducible partial differential equation. Reducible means that the factor f d d dash is factorizable into the linear factor. So after that कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम लोग ट्राई कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश जेड इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल वी should identify that the given partial differential equation is reducible or irreducible. As you can see that d square minus d dash square plus d minus d dash is reducible into linear factors. Its factorization is very simple. You can break d square minus d dash square into d minus d into d plus d. d minus d यहाँ पर भी है, simply आप लोग इसको कॉमन लीजिए. Then the factors of the given f d d dash will be into d minus d dash into d plus d dash plus 1 z equal to 0. Right hand side of the differential equation is 0. So आपको pi 0 मिलेगा,
देन ऑब्वियसली सी एफ ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब सी एफ कैसे निकालना है? सी एफ आपको निकालना है बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करने पर वो कैसे आप लोग कंपेयर करेंगे? सबसे पहले डी माइनस डी डैश आप लोग लीजिए। डी माइनस डी डैश में बी इक्वल टू कितना हुआ? 1 हुआ। ए इक्वल टू कितना हुआ? ये भी 1 हुआ। सी इक्वल टू कितना हुआ? ये आपका 0 होता है। अब इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा सी एफ क्या था? ए टू द पावर सी एक्स अपॉन बी इंटू फाइव ऑफ बी फाइव ऑफ। तो सी एफ बच्चों हमारा क्या था? सी एफ हमारा बनता था ए टू द पावर सी एक्स अपॉन बी इंटू फाइव ऑफ बी वाई माइनस प्लस ए एक्स। ठीक है, ये हमारा सी एफ बनता था। अभी हमने देखा था कि बी ए और सी की क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो बी और सी और ए इन सब की वैल्यूज़ आप लोग डी माइनस डी डैश के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करेंगे। तो सी आपका 0 था तो ए टू दी पावर 0 यानी कि 1 हुआ एंड पाई 1 ऑफ वाई प्लस एक्स यानी कि आपका बी भी 1 था, ए भी 1 था। अगर आप लोग सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं तो आपको सी एफ का ये पार्ट मिला। फिर हम लोग सेकंड वेक्टर के लिए काम करेंगे डी प्लस जी डैश प्लस 1 के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू -1। तो इफ़ वी आर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ ए बी एंड सी इन दिस standard factor standard form, then we will get e to the power minus ax into phi 2 of y minus x, where phi 1 and phi 2 are the arbitrary functions। जितने भी आपके फैक्टर्स यहाँ पर होंगे सबका आप लोग अलग अलग सी एफ निकालिए, लास्ट में उनको ऐड कर दीजिए, विच गिव्स यू द कंप्लीट सी एफ। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 0 था तो सी एफ प्लस पी आई गिव्स द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस 2a b d प्लस 2a स्क्वायर b d डैश z इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल। कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं? सिंपली आप लोग जो आपका ये फैक्टर है एफ डी डी डैश, इसको फैक्टोराइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये फैक्टोराइजेबल है देन आपकी इक्वेशन रिड्यूसिबल होगी और नहीं है तो ये इरेड्यूसिबल होगी। तो मैंने इसको फैक्टोराइज करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर सकते हैं। डी प्लस ए डी डैश इंटू डी माइनस ए डी डैश, यहाँ से आपने 2a भी कॉमन ले लिया, 2a भी कॉमन लेकर आपको डी प्लस ए डी डैश मिलेगा। नाउ डी प्लस ए डी डैश is common in both of the terms, so it can be take out. Remaining values are d into d minus ad dash plus 2ab z equal to 0। then again हर एक फैक्टर में आपको a b c की वैल्यूज़ कंपेयर करनी है और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है। तो इन द फर्स्ट फैक्टर d माइनस ए डी डैश, इसमें बच्चों कैसे आपको पता चला? b इक्वल टू आपका 1 है, ए इक्वल टू आपका -a है एंड सी इक्वल टू आपका 0 है। तो अगर इन सबको मैं यहाँ पर पुट करूँ तो देखिए इसका सी एफ क्या बनता है? ए टू द पावर सी एक्स अपॉन बी आता है तो वहाँ से सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग 0 हो गया। ठीक है, और फाई 1 वाई क्या होता था? बी वाई प्लस ए एक्स, तो बी वाई बी इक्वल टू 1 है और ए वाई ए इक्वल टू -a है तो वाई माइनस ए एक्स। सिमिलरली फॉर द सेकेंड टर्म we can compare a b and c again for the second factor। here b equal to 1, a equal to minus a again and c equal to 2ab। so फिर से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पुट करते हैं तो ए टू दी पावर माइनस 2abx इंटू 5 वाई प्लस ए एक्स। तो सिंपली आपको क्या करना है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल है तो आप लोग सिंपली उसको फैक्टोराइज कीजिए, हर फैक्टर को कंपेयर कीजिए बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी से, और उन सब की वैल्यूज़ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देनी है। आप लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
दैट हाउ कैन वी फाइंड द सी एफ ऑफ इरेड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इरेड्यूसिबल कब होगा, जब आपका एफ डी डी डैश लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल नहीं है। तो इस केस में काफ़ी सिंपल है, आप लोग केवल सी एफ इस अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं कि सी एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर ए कैपिटल ए स्मॉल एच स्मॉल के आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, वेयर एच एंड के सेटिस्फाइज दिस फैक्टर। जो आपका एफ डी डी डैश है उसको आपके एच और के सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि डी को आप लोग एच और डी डैश को आप लोग के सिंपली पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एच की इज इक्वल टू जीरो, ये आपका सेटिस्फाई आपको होकर मिलेगा। तो इरेड्यूसिबल पर बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सॉल्व डी माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो। हियर यू कैन सिंपली सी दैट डी माइनस डी डैश स्क्वायर इज नॉट फैक्टोराइजेबल इनटू द लीनियर फैक्टर्स। सो अगर ये लीनियर फैक्टोराइजेबल नहीं है तो आप लोग सिंपली इसका सी एफ कैसे निकालते हैं, ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर एच एंड के सेटिस्फाइज द गिवन फैक्टर दैट इज डी माइनस डी डैश स्क्वायर। तो एच माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हियर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो, सो आपको पी आई जीरो मिलेगा। और आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे समेशन ऑफ ए ई टू द पावर के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई से। हमने क्या किया, एच और के में सिंपली किसी भी एक कांस्टेंट की आप लोग वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। हमने एच इक्वल टू के स्क्वायर पुट कर लिया, सो इट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2 वी अगेन सी दैट डी माइनस टू डी डैश माइनस वन इंटू डी माइनस टू डी डैश स्क्वायर माइनस वन जेड इक्वल टू जीरो। तो हियर डी minus d dash minus 2d dash minus 1 is a linear factor, and obviously it is in the standard form of bd minus ad dash minus c. But for the second term it is not factorizable into the linear factors. So for the first factor we can compare value of b is equal to 1, value of a is equal to 2 and value of c is equal to 1 again. So इसका सी एफ बच्चों कैसे निकलेगा, इसका सी एफ निकलेगा ए टू द पावर सी एक्स प्लस बी, सी इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, तो ए टू द पावर एक्स एंड फंक्शन ऑफ फाइव ऑफ वाई प्लस टू एक्स, यानी कि बी वाई प्लस ए एक्स होता था। बी और ए की वैल्यूज़ हम लोग सिंपली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देन फॉर द सेकेंड फैक्टर विच इज़ नॉट फैक्टोराइजेबल, तो अगर आपका फैक्टर फैक्टोराइजेबल नहीं है तो इसका सी एफ आपको इस अकॉर्डिंग निकालना है, सी एफ इज इक्वल टू ए टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, where h and k satisfies this factor. Okay, तो we are replacing d by h and d dash by k square, तो h minus k square minus 1 equal to 0, h equal to k square 2k square plus 1. So complete solution is given by, a complete CF is given by summation a e to the power 2k square plus 1 plus into h plus ky। यहाँ पर हमने k को h को 2k स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया है। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ द कंप्लीट सी एफ। तो हम लोग जो दो पार्ट ऑफ सी एफ हमको मिले, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकेंड वन इज़ दिस, उन दोनों को ऐड कर देते हैं विच गिव्स यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। आफ्टर दैट